My dear students, welcome to Methodological. Welcome to second session of the mixed practice. Start करते हैं session. So first question, a 3-letter code for certain locks uses the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 according to the following constraints. So the conditions are that the first digit cannot be 0 or 1, second digit must be 0 or 1, and second and third digit cannot both be 0 in the same code. So how many different codes are possible? Pause the video and try to solve it first yourself. So conditions given क्या है? There is a 3-digit code, 3-letter code. Let's say this is digit number 1, this is second digit, this is third digit. And the conditions are that first digit cannot be 0 or 1. This cannot be 0. This cannot be 1. So all the other digits from 2 to 9 are possible. Second digit must be 0 or 1. It must be either 0 or 1. 0 or 1. No other digit is possible. तो 2 से 9 तक का कोई भी digit नहीं हो सकता. And third digit and second digit cannot both be 0. Cannot both be 0. यानी कि if this is 0, the third digit will not be 0. It can be any other digit from 1 to 9. And if this is 1, then it can be any digit. No problem. So this is the basic constraint in the question. Isn't it so? Clear है? तो फॉर डिजिट 1 कितनी पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास? 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो इट कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 2 to 9, यानी कि 8 पॉसिबल ऑप्शंस आर देयर फ्रॉम 2 to 9. टोटल डिजिट्स 10 होती हैं, 2 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल ऑप्शंस फॉर डिजिट नंबर 1. ओके, 8 पॉसिबल ऑप्शंस. For digit number 2, there are 2 possible options. But for both the possible options, digit number 3 के available options different है. ठीक है, different options है. तो if we are choosing digit number 2 as 0, तो digit number 3 के लिए कितने possible options बचेंगे फिर? 8 possible options, 9 बचेंगे, 1 से 9 तक के 9 options बचेंगे from 1 to 9. Okay, and if we choose 1 as digit number 2, in that case digit number 3 कुछ भी हो सकता है, तो 10 options होंगे from 0 to 9, सारी values possible है. Okay, so 9 options in the first case or 10 options in the second case. Okay, and in both these cases digit 1 हमारा कुछ भी हो सकता है, तो digit 1 के लिए possible options कितने होंगे? ठीक है, 0 हमने चूज किया है, ध्यान रखना, 0 is not the possible options. ठीक है, तो 0 is the, अगर मैं 0 चूज किया तो एक ही तरीका है डिजिट 2 को फिल करने का. 0 फिल किया हमने वहां पे. ठीक है, डिजिट 2 फिल करने का सिर्फ एक वे होगा फर्स्ट केस में. डिजिट 3 फिल करने के 9 वेज होंगे और डिजिट 1 फिल करने के 8 वेज होंगे. प्लस सेकेंड केस में डिजिट 2 फिल करने का 1 फिल कर दिया हमने, तो ओनली 1 ऑप्शन. डिजिट 3 फिल करने के 10 ऑप्शंस एंड डिजिट 1 फिल करने के 8 ऑप्शन. सो दिस विल बी अवर आंसर 8 into 9 प्लस 8 into 10, यानी कि 8 into 19 हो जाएगा. सो आंसर विल बी 152. 8 into 19, ऑप्शन बी 152. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. इसी सेम चीज को ऐसे भी सोच सकते थे कि डिजिट 1 फिल करने के 8 ऑप्शंस आर देयर, डिजिट 2 फिल करने के 2 ऑप्शंस आर देयर एंड डिजिट 3 फिल करने के 10 ऑप्शंस. 8 into 2 into 10 came out to be 160. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन बोथ सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर 0, तो वो केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो. जबकि सेकंड डिजिट भी 0 हो, थर्ड डिजिट भी 0 हो, तो बोथ डिजिट्स आर 0. तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास? 8, यानी कितने नंबर्स होंगे? ऐसे 8 नंबर्स होंगे. तो ऐसे 8 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 160 minus 8, आंसर विल बी 152. ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 4 red and 6 black balls in the basket A and there are 15 balls in basket B. One ball is randomly picked from each basket. The probability of both the balls being black is 1 upon 5. Okay, so यहाँ से we can get the value of number of black balls in basket B by the first two statements. Third statement, basket B contains more black balls than blue balls and rest are red balls. तो बास्केट बी में ब्लैक बॉल्स ज्यादा है, ब्लू बॉल्स कम है. ब्लैक बॉल्स का नंबर हमें पता चल गया है, आई मीन अभी सॉल्व नहीं किया है, बट जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा. ठीक है, सो ब्लैक बॉल्स विल बी मोर देन ब्लू बॉल्स एंड रेस्ट विल बी रेड बॉल्स. देन द कंडीशन इज दैट नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या होगा? ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं. सो बास्केट ए में there are 4 red balls
and 6 black balls. ओके, ब्लैक बॉल्स, ब्लैक को के भी लिख देते हैं बिकॉज ब्लू बॉल्स भी हैं बाद में. और बास्केट बी में देयर आर 15 बॉल्स इन टोटल. ठीक है, सम आर रेड, सम आर ब्लैक एंड सम आर ब्लू. ठीक है, सो बास्केट ए से हमने एक बॉल रैंडमली पिक किया, बास्केट बी से एक बॉल रैंडमली पिक किया, and the probability of both the balls being black is 1/5. So one ball is picked randomly from basket A, one ball is picked randomly from basket B, and the probability of both balls being black is 1/5. Okay, so probability of black ball being picked up from basket A will be 6/10 because 6 are black balls, total balls are 10. ठीक है, और बास्केट बी से ब्लैक बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? लेट अस से x आर ब्लैक बॉल्स, सो x अपॉन 15. और क्योंकि दोनों बास्केट से ब्लैक बॉल पिक करना इज इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों आपस में तो कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, दोनों बास्केट से अगर हमारा ब्लैक बॉल पिक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बास्केट ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बास्केट बी. बोथ विल बी मल्टीप्लाइड बिकॉज बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. इजंट इट सो? ठीक है, क्लियर है? तो 6/10 इंटू x by 15, दिस विल बी इक्वल टू 1/5. सो दिस बिकम्स 3/5. 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 1, यानी 3x इज इक्वल टू 15. सो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 एंड हेंस देयर आर 5 ब्लैक बॉल्स इन बास्केट B. 5 black balls in the basket B, and we know basket B contains more black balls than blue balls, यानी कि 5 is greater than number of blue balls and definitely total 15 है. तो अगर हमारी 5 ब्लैक बॉल्स हैं तो रेड और ब्लू मिला के कितना बचा? 10 बॉल्स बचा. और अगर ब्लू बॉल्स हमारी लेस देन 5 होगा तो रेड बॉल्स विल बी ग्रेटर देन 5. Isn't it so? तो 5 will be less than number of red balls. I repeat, total balls are 15, out of which 5 are black balls, some are red balls, some are blue balls. So red balls plus blue balls is equal to 10, and blue balls is less than 5, so red balls will be greater than 5. Okay, number of red balls is a multiple of 4. So if number of red balls is a multiple of 4, भाई number of red balls कितना हो सकता है फिर उस केस में? It could be 4 और 8 और 12, क्योंकि बास्केट बी में टोटली 15 है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता. ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता. Isn't it so? क्लियर है? तो 4, 8 एंड 12 आर द पॉसिबल केसेस, बट क्योंकि ब्लैक बॉल्स ही हमारी अकेले 5 हैं और रेड प्लस ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10, तो 12 भी नहीं हो सकता. नंबर ऑफ रेड बॉल्स कैन नॉट बी 12, इट कैन ओनली बी 4 और 8. बट सिंस रेड बॉल हैज टू बी greater than 5, so the only possible option is 8. So there will be 8 red balls, 5 black balls, total 15 है, तो there will be only 2 blue balls. 8 red, 5 black and 2 blue balls. Option B, क्योंकि blue balls पूछा है, option B will be the answer. क्या ये समझ में आता है? क्या ये क्लियर हुआ? सबसे पहले we found out number of black balls which came out to be equal to 5. Now black balls are more than blue balls, तो 5 are black balls, तो blue balls will be less than 5. ठीक है, एंड सिंस टोटल इज 15, तो रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू 10, ब्लू बॉल्स आर लेस देन 5, तो रेड बॉल्स विल बी ग्रेटर देन 5, एंड रेड बॉल्स आर आल्सो मल्टीपल ऑफ 4. तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज, बिकॉज 4 का मल्टीपल है एंड रेड बॉल्स आर ग्रेटर देन 5, तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज 8. कैन नॉट बी 12 बिकॉज 12 हो जाएगा, 12 प्लस 5 17 बॉल्स हो जाएंगे बास्केट बी में, जो कि है नहीं, 15 है एक्चुअल में. तो द ओनली पॉसिबल केसेस दैट रेड बॉल्स आर इक्वल टू 8, ब्लैक बॉल्स आर इक्वल टू 5, तो ब्लू बॉल्स विल बी 15 minus 8 plus 5 which is equal to 2. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The population of the city Bidisha increased from 4.8 lakhs in the year 2009 to 6 lakh in 2024. And the gross domestic product of the city in 2009 was 3/8 less than in 2024. So what was the approximate percentage change in the per capita gross domestic product of the city from 2009 to 2024? Now this is a simple question, a good one, a simple question but interesting one. So pause the video and try to solve it. ठीक है, पॉपुलेशन क्या है सिटी विदिशा का? हर एक क्वेश्चन में ये पॉज करके सॉल्व तो करना ही करना है. ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, चलने दो, सॉल्व जरूर करो. ठीक है, सो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी विदिशा हैज इंक्रीज फ्रॉम 4.8 lakhs to 6 lakhs from 2009 to 2024, and GDP of the city in 2009 was 3/8 लेस देन दैट इन 2024. तो जीडीपी का एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पॉपुलेशन का एक्चुअल वैल्यू पता है, और क्वेश्चन फाइनली हमसे पूछ कह रहा है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द पर कैपिटा जीडीपी. तो पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है?
per capita GDP is GDP divided by number of persons or population, because per capita implies per person GDP, GDP per person. तो GDP divided by population, that is per capita GDP. ठीक है. So since ultimately we need approximate percentage change, percentage is also a ratio only. So ratio में हमें आंसर चाहिए, तो हमें एक्चुअल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता. We only are concerned with the ratio of the numbers. तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी का भी रेशियो ले लो. 4.8 लाख है, 6 लाख है. रेशियो विल बी 4.8:6 और 4:5. तो 4:5 का रेशियो आ जाएगा. रेशियो ऑफ पॉपुलेशन विल बी 4:5 एंड फ्रॉम 2009 to 2024. ओके. जीडीपी का रेशियो क्या है? क्वेश्चन इज सेइंग स्पेसिफिकली that GDP of city in 2009 was 3/8 less than that in 2024. 3/8 less than that in 2024. ठीक है. So if GDP was 8 units in 2024, तो 2009 में क्या होगा? 3/8 लेस होगा. ठीक है. So if initially it was 8, 3/8 लेस का मतलब क्या हुआ? If initially it was 8, so it is 3 less. So 8 minus 3, it will be 5 units in 2009. क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये पार्ट क्लियर होता है? ठीक है. ऐसे समझो, इफ इट वाज 8/8 in 2024, दिस इज 5/8 in 2009, which is 3/8 लेस. ठीक है. बट फ्रैक्शंस में हमें डील नहीं करना है. दैट इज वाई वी हैव अज्यूम्ड दैट द बेस वैल्यू, बेस इज 8, डिनोमिनेटर इज 8. सो इफ जीडीपी वाज 8 यूनिट्स इन 2024, तो 8 minus 3, दिस विल बी 5 यूनिट्स इन 2009. ओके. एंड पॉपुलेशन का रेशियो भी हम निकाल ही चुके हैं. पॉपुलेशन का रेशियो क्या है? 2009 में दिस इज 4 यूनिट्स एंड ऑर्डर ध्यान रखना है, 5 units in 2024. Now GDP by population is per capita GDP. So divide it accordingly. So GDP by population, per capita GDP will be in the ratio 5/4 is to 8/5. Now we have to remove these fractions to multiply both values by 4 into 5, 20. So ultimate ratio will be 5 into 5, 25 is to 32. So if GDP per capita was 25 units in 2009, it will be 32 in 2024. So there will be an increase of 7 units on the base of 25. 7 units का increase हुआ है. बेस क्या है? 25. बेस क्या है हमारा? 2009 का GDP per capita. So 7/25 is the fraction, and since we need percentage to multiply by 100, so 7 into 4, this will be 28%. 28%. Option C. Clear है? Okay. ठीक है. Next question. A by B plus 1 upon C by B in the expression above, A, B and C are different numbers and each is one of the numbers 2, 3 and 5. So what is the greatest possible value of the expression? A by B plus 1 upon C by B in the expression above, A, B and C are different numbers and each is one of the numbers 2, 3 and 5. So what is the greatest possible value of the expression? So you have to maximize this value. ठीक है. तो कभी भी किसी फ्रैक्शन को पहले थोड़ा कन्वेंशनली समझते हैं, फिर बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन में. और इजी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, बट पहले थोड़ा कन्वेंशनली इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक है. सो न्यूमरेटर हमारा है a by b plus 1, डिनोमिनेटर है c by b, एंड इफ वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, सो वी मस्ट मैक्सिमाइज द न्यूमरेटर एंड मिनिमाइज द डिनोमिनेटर. भाई किसी भी फ्रैक्शन में जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा, the larger the numerator, the larger will be the number, and the smaller the denominator, the larger will be the number. ठीक है. Isn't it so? Clear है? तो हमें मैक्सिमाइज करना है न्यूमरेटर को एंड मिनिमाइज करना है डिनोमिनेटर को. यानी a by b plus 1 should be maximized and c by b should be minimized. तो c by b should be as less as possible. Okay. And a by b should be as high as possible. That is the approach. बट क्योंकि रेशियो ले रहे हैं तो साथ में बाद में रेशियो भी चेक करना है कि रेशियो अपना किस केस में लार्जर आ रहा है. ओके. एंड a, b and c can be any of the numbers from 2, 3 and 5, but all of them should be different. Okay. So we have to maximize a by b plus 1 और maximize a by b. तो a को maximum ले सकते हैं. We can take a as equal to 5. And since we have to minimize c by b, तो b जितना बड़ा हो उतना बेटर है. c को छोटा रखते हैं. तो b should be equal to 3. And c is equal to, let us take these three values. So a by b will be 5/3 plus 1 divided by c by b will be 2/3. So 5/3 plus 1 will be 8/3 upon 2/3. So 8/2, which is equal to 4. This value comes out to be equal to 4.
बट सिंस वी आर टेकिंग रेशियो तो वी आर नॉट वेरी श्योर, तो और भी वैल्यूज को लेकर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो सेकंड मेथड कुड बी कि हम सिंस c by b हैज टू बी मिनिमम, तो वी कैन टेक b एज द मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज इफ डिनोमिनेटर ऑफ c by b is maximum, c by b will be minimum, ठीक है। सो फॉर दैट केस वी हैव टू टेक b इज इक्वल टू 5 एंड a by b को मैक्सिमाइज करना है तो a को इक्वल टू 3 ले लो एंड c इज इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। नाउ b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू 3 है, 3 by 5 प्लस 1 अपॉन c is 2, तो 2 by 5, okay, this becomes 3 by 5 plus 1 which is 8 by 5 upon 2 by 5, so again this becomes 4 only, so both these values are coming out to be equal, so maximum value will be equal to option D which is equal to 4, ठीक है। if you will take any other combination the value obtained will be lesser than that, क्या ये क्लियर है, ठीक है। but this question was not so difficult कि हमें इस क्वेश्चन में इतना अप्रोच करना पड़ता, this was far easier question अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। क्वेश्चन इज a by b प्लस 1 अपॉन c by b, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम इन द न्यूमरेटर, सो दिस बिकम्स a प्लस b अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन b, सो दिस अपॉन b वाला पार्ट गेट्स कैंसल्ड आउट एंड दिस बिकम्स a प्लस b बाई c। नाउ द क्वेश्चन इज मच इजियर टू हैंडल, a प्लस b बाई c है और हमें मैक्सिमाइज करना है, तो a प्लस b को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी को मैक्सिमाइज करेंगे और c को करेंगे मिनिमाइज, दिस मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड एंड दिस मस्ट बी मिनिमाइज्ड, तो अब चीजें आसान है, a प्लस बी को मैक्सिमाइज करना है तो a को ले लो 5, b को ले लो 3 एंड c शुड बी मिनिमम बाई 2, 8 by 2 इज इक्वल टू 4 which is equal to 4, क्लियर है, ओके। एंड दैट इज व्हाई यू कैन ऑब्जर्व कि सिंस a प्लस b को 8 होना है तो whether you take a 5 or b 5 that is immaterial because sum will be equal to 8 as long as you are taking the other value as 3। वही सेम तो हमारे केस में भी हुआ कि फर्स्ट केस में we took a as equal to 5, b as equal to 3, सेकंड केस में we took b as equal to 5 and a as equal to 3 and in both cases we got the answer as equal to 4। अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इन्वेंटरी ऑफ अ सर्टेन fruit merchant the ratio of mangoes to apples was initially 3:8. After 3 mangoes were removed from the inventory and 2 apples were added, the new ratio was 1:3. So find the number of apples originally in the inventory. तो इन्वेंटरी में the ratio of mangoes to apples initially क्या है, 3:8 है। After 3 mangoes are removed from the inventory and 2 apples are added, the new ratio becomes 1:3. So we have to find the number of apples originally in the inventory. क्या क्वेश्चन हमसे डिजायर कर रहा है फाइनली, नंबर ऑफ एप्पल्स ओरिजिनली इन द इन्वेंटरी, ठीक है। इनिशियली कितने थे, और क्वेश्चन में हमें इनिशियली पता है कि मैंगोज और एप्पल्स का रेशियो इज 3:8, so apples initially are a multiple of 8, isn't it so? They are a multiple of 8, but all the options are multiple of 8, so यहाँ से eliminate तो नहीं हो पाएगा, but then we also know that 2 apples are added, initially they are a multiple of 8, ठीक है। तो इनिशियली तो रेशियो में गिवन है, बट हमें जो 2 एप्पल्स गिवन है तो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 2 एप्पल्स को तुम ऐड करते हो देन द न्यू रेशियो इज 1:3, और सिंस एप्पल्स एंड मैंगोज बोथ आर इंटीजर्स सो 2 ऐड करने के बाद में द नंबर्स बिकम्स मल्टीपल ऑफ 3, इनिशियली इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8 बट व्हेन यू ऐड 2 मोर एप्पल्स दिस बिकम्स अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बस तुम अपने ऑप्शंस में ये चेक कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर ऑफ एप्पल्स ओरिजिनली की वैल्यू तो गिवन है ऑप्शन में, ये चेक कर लो कौन सी वैल्यू में 2 ऐड करने पे यू गेट अ मल्टीपल ऑफ 3, वही आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा मिलेंगे तो फिर अलग की बात है, बट अगर एक ही ऑप्शन मिला तो आंसर हो जाएगा। तो 24 + 2 is 26, this is not a multiple of 3, so this cannot be the answer। 32 + 2 34, not a multiple of 3, this cannot be the answer। 48 + 2 50, so definitely 88 is the answer। 88 + 2 is 90, तो yes this is checking all the boxes, so this must be the answer। क्या ये पार्ट क्लियर है कि इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज द आंसर, बिकॉज ऑप्शंस तो हमेशा गिवन होंगे एग्जाम्स में, तो हम ऑप्शन से जरूर जा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते, इफ देयर वर मोर देन वन ऑप्शंस, तो एक बार ऑप्शन से भी अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते और हम उतना आगे बढ़ चुके थे तो फिर उनमें से एक ऑप्शन को चूज करके सेटिस्फाई करा लेते, ये कर सकते थे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता तो आंसर हो जाता, नहीं सेटिस्फाई करता तो जो बच गया था वो आंसर हो जाता, ठीक है। कन्वेंशनली सॉल्व कैसे करेंगे, मैंगोज एंड एप्पल्स, इनिशियल रेशियो है 3:8, तो लेट्स से 3x आर मैंगोज एंड 8x आर एप्पल्स,
Then we are removing 3 mangoes and adding 2 apples, and now the ratio is 1:3. ठीक है, 1:3. तो 3x minus 3 upon 8x plus 2, this is 1/3. तो 3 into 3x minus 3 यानी कि 9x minus 9, this is equal to 8x plus 2. So x is equal to 11 आ गया. और हमें क्या चाहिए वैल्यू? हमें चाहिए नंबर ऑफ एप्पल्स की विच इज 8x. सो दिस विल बी 88 ओनली. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A calculator has two memory buttons P and Q. Value 1 is initially stored in both memory locations. The following sequence of steps is carried out 7 times. First step, add 1 to Q. Second step, multiply P and Q. Third step, store the result in P. So what is the value stored in the memory location P after this complete procedure is carried out 7 times? Okay. क्या होगी वैल्यू? So initially P and Q both are equal to 1. Both are equal to 1. But then हम क्या करते हैं? First step is, ठीक है, the following sequence of steps are carried out 7 times. तो टोटल 7 साइकिल्स हैं. ठीक है, 7 साइकिल्स हैं. तो फर्स्ट साइकिल ऑपरेट करते हैं. In the first cycle, what we are doing? We are adding 1 to Q. So if we are adding 1 to Q, so now the Q will be 1 plus 1, 2. Now Q is 2. And now we are multiplying Q and P. So 2, P तो अभी 1 है, तो 1 into 2 multiplied, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा जो, that result is stored in P. So now the P becomes 1 plus 1, 2. Okay. We are adding 1 to Q, so now Q is equal to 2. Now we are multiplying P and Q, so now 2 into 1 becomes 2, and that 2 is equal to value of P. So after the first cycle, the value of P and Q both are equal to 2. Okay. Second cycle. In the second cycle again, increase the value of Q by 1. So now the Q is equal to 3. Then multiply Q with the value of P. So 3 into 2, this will become 6. Third cycle. Increase the value of Q by 1. 3 plus 1 becomes 4. Now multiply 4 and 6. So 4 into 6, this is equal to 24. Third cycle complete. क्या पैटर्न देख पा रहे हो? Cycle number 4. Increase Q by 1. So now Q becomes 5. Now 5 is multiplied by 24. 5 into 24 becomes 120. So now P is 120. So are you able to observe the pattern? ठीक है. After cycle 1, the P is equal to 2. 1 था initially. After cycle 1, this becomes 2. After cycle 2, this becomes 6. After cycle 3, this becomes 24. After cycle 4, this becomes 120. तो हो क्या रहा है? Every time initially this was multiplied by 2, क्योंकि Q2 हो गया था, फिर multiplied by 3, then 4, then 5. भाई Q पे क्या फर्क पड़ रहा है? After each cycle, this is increasing by 1 only, and that value is being multiplied on P. So after cycle 1, P is 1 into 2. After cycle 2, P is 1 into 2 into 3. After cycle 3, P is 1 into 2 into 3 into 4. Basically, this is 2. This 2 is what? This is 2 factorial. This is 3 factorial. This is 4 factorial. This is 5 factorial. या 1 into 2 into 3 into 4 into 5. ठीक है. सो साइकिल 4 के बाद में हो गया 5 फैक्टोरियल, साइकिल 3 के बाद में हो गया 4 फैक्टोरियल. तो इन जनरल साइकिल n के बाद में क्या होगा? दिस विल बी n plus 1 फैक्टोरियल. P का वैल्यू विल बी n plus 1 फैक्टोरियल. Because before cycle 1 it was equal to 1. cycle 1 के बाद में this is multiplied by 2. cycle 2 के बाद में this is further multiplied by 3. cycle 3 के बाद में this is further multiplied by 4 and so on. That is why this is the generalization. That's after cycle this will be n plus 1 factorial. Total cycles कितनी है? 7. After cycle number 7 this will be 7 plus 1 factorial, which is 8 factorial. 8 factorial will be the answer. और 8 factorial का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8. So from 1 to 6, this is 720 into 7, 5040 into 8. So this will be 40,320. This will be the answer. Option E.
ई क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, ऑप्शन ई विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? Okay. Next question. If x is equal to minus 0.25, then which of the following has the smallest value? If x is equal to minus 0.25, then which of the following has the smallest value? 2 to the power 1 by x, 1 by x, 1 by x square, 2 to the power x, minus 1 upon root of minus x. So x is a negative value, minus 0.25 है, less than 0 है, और हमें क्या चाहिए? We need smallest value. ठीक है, तो डेफिनेटली इफ देयर इज एनी नेगेटिव वैल्यू दैट विल बी स्मॉलर. ठीक है, जीरो होगा, मिडिल में होगा, और ग्रेटर देन जीरो विल बी लार्जर वैल्यूज. तो हमें फोकस किन पे करना है? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो वी हैव टू फोकस व्हाट वैल्यूज ऑफ आउट ऑफ दीज गिवन वैल्यूज आर नेगेटिव. ठीक है, सो 2 टू पावर 1 बाई एक्स, वैल्यू कुछ भी हो बट दिस विल बी पॉजिटिव, बिकॉज 2 की पावर समथिंग है और 2 की पावर से पहले कोई नेगेटिव साइन तो लगा नहीं है, तो दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव. 1 बाई एक्स विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, बिकॉज एक्स नेगेटिव है, तो 1 बाई एक्स नेगेटिव होगा. 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा. 2 टू द पावर एक्स, अगेन 2 टू द पावर समथिंग है, तो पावर नेगेटिव होगा, तब भी ये नंबर पॉजिटिव ही रहने वाला है. सो ओनली वन नंबर अप टिल नाउ इज नेगेटिव, ऑप्शन बी. ऑप्शन ई इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ समथिंग. रूट ऑफ समथिंग विल बी पॉजिटिव, बट 1 बाई रूट ऑफ समथिंग विल बी पॉजिटिव, बट माइनस साइन ऐड कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. सो यू हैव टू चेक बिटवीन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई. वन ऑफ दीज विल बी द आंसर. One of these will be the answer. Okay, x is equal to minus 0.25 and 0.25 is 1 by 4, तो minus 1 by 4 हो गया ये, minus 1 by 4, तो 1 upon x will be equal to, which is option B, 1 upon x is equal to 1 upon minus 1 by 4. रेसिप्रोकल हो जाएगा, so this will be minus 4. minus 4. Option E, minus 1 upon root of minus x. Okay, minus 1 upon root of minus x. So this will be minus 1 upon root of minus x is minus 1 by 4, तो minus of minus 1 by 4, which becomes plus 1 by 4. तो minus 1 upon root of 1 by 4. This will be 1 by 2. तो minus 1 upon 1 by 2. This will be minus 2. Okay, minus 4 और minus 2 में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा? जो ज्यादा नेगेटिव होगा. नंबर लाइन में ऑब्जर्व करोगे, जब भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो, जीरो ड्रॉ करो. माइनस 2 विल बी समवेयर हियर, माइनस 4 विल बी फर्दर लेफ्ट वर्ड्स, तो स्मॉलर वैल्यू. ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा आएगा? माइनस 4 ओनली. ओके, क्लियर है? सो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. बट बाकी नंबर्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, सबको एक बार ऑर्डर में लगा देते हैं. ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी 2 टू द पावर 1 बाई एक्स, यानी कि 2 टू द पावर 1 बाई एक्स क्या होगा? 1 बाई एक्स इज माइनस 4, 2 टू द पावर माइनस 4, विच इज 1 अपॉन 2 टू द पावर 4. सो 1 बाई 16 हो गया. ऑप्शन ए 1 बाई 16. ठीक है, ऑप्शन सी इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज 1 अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो. एक्स क्या है? माइनस 1 बाई 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 16, तो 1 अपॉन 1 बाई 16, दिस विल बी इक्वल टू 16. तो दिस इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट. देखते हैं ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन डी इज 2 टू द पावर एक्स, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई 4. ओके, सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 4. ओके, और 2 टू पावर 1 बाई 2 क्या होगा? रूट 2, विच इज 1.414, और ये 2 टू पावर 1 बाई 4 है, यानी कि दिस इज 2 टू पावर 1 बाई 2 का भी 1 बाई 2 पार, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.414. रफली ये 1.19 के आसपास आएगा, बिकॉज 1.2 का स्क्वायर क्या होता है? 1.2 स्क्वायर इज 1.44, तो दिस विल बी रफली 1.19 1.18 के आसपास का वैल्यू आएगा. ठीक है, 1.18 19 के आसपास, 19 मान लेते हैं. ओके, सो रफली दिस विल बी 1.19. सो 1 अपॉन 1.19, which will be approximately 0.83. Okay, 0.83. So these are all the values. B was here, E was here, A is here, C is here,
and D is here. So the correct order is B is less than E is less than A is less than D, and D is less than C. This is the correct order. Okay, ठीक है. Next question. A number is randomly selected from the first 96 natural numbers. So what is the probability that this number is divisible by 3 or 5 but not both? The number is randomly selected from the first 96 natural numbers from 1 to 96, including 96, and probability that this number is divisible by 3 से divisible होगा चलेगा, 5 से divisible होगा तो भी चलेगा, but not by both. दोनों से divisible होगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा. Okay, so numbers divisible by 3, they will be 3, 6, 9, table of 3, 3, 6, 9, 12, 15, and so on till 96. Last number 96 will be 3 का multiple है, so till 96. These numbers are divisible by 3. Numbers divisible by 5, 5, 10, 15, 20, 25. लास्ट नंबर क्या होगा 95. तो डिविजिबल बाय 3 नंबर्स कितने हैं 3 से लेकर 36 है. 36 क्या है 32 इंटू 3, तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे 32. ओके, और नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे 5, 10, 15, 95, 19, 5 जा 95, तो 19 नंबर्स होंगे. 3 से डिविजिबल नंबर्स चलेंगे, 5 से डिविजिबल नंबर्स चलेंगे, बट क्या नहीं चलेगा डिविजिबल बाय बोथ. तो डिविजिबल बाय 15 नंबर्स कितने होंगे 15, 30, 45, 60, 75 and 90. Only 6 numbers are there. Okay, the probability will be number of favorable events divided by number of total events, total outcomes. और काम के नंबर्स हमारे कितने हैं 32 नंबर्स काम के हैं, 19 नंबर्स और हैं जो कि काम के हैं, बट जो 6 नंबर्स हैं ये काम के नहीं है. बट यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल दीज 6 नंबर्स विल बी कमिंग इन दीज 32 नंबर्स एज वेल एज इन दीज 19 नंबर्स. दोनों में आएंगे, दोनों में आएंगे. ठीक है, तो तुमको 6 कितने टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्ट करने से 3 में जितने आ रहे हैं वो तो चलो हटा लिया तुमने, बट 5 में भी तो आ रहे हैं. तो इनको 6 को तुम्हें 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो -12 करोगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 32 + 19 -12 करोगे, -6 नहीं करोगे, बिकॉज हमें ये वाले नंबर्स चाहिए नहीं है, बट नॉट बोथ. ओके, सो हमें 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्या ये समझ में आता है? ठीक है, बिकॉज 3 में भी इंक्लूडेड है, 5 में भी इंक्लूडेड है, दोनों को हटाना है हमें, दोनों को हटाना है. तो 32 + 19 -12 टोटल नंबर्स आ जाएंगे हमारे 51 - 12 39. तो काम के नंबर्स है 39, फेवरेबल आउटकम्स आर 39, टोटल आउटकम्स आर 96. 39 by 96, दिस विल बी 13/32. The answer will be 13/32. Okay, this was the most important part of this question to subtract 12. बहुत लोग गलती क्या करोगे 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और 6 सब्ट्रैक्ट करने में हमें क्या मिलेगा डिविजिबल बाय 3 और 5 और बोथ, क्योंकि वहां पे 3 में भी काउंट हो रहे हैं, 5 में भी डबल काउंटिंग तो इनका ऑलरेडी हो रहा था. तो एक बार जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक बार वो काउंटिंग हटेगा, बट एक बार तो फिर भी काउंट हो रहे हैं, तो इसलिए 2 बार तुम्हें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ताकि पूरी तरह से काउंटिंग हट जाए. क्लियर है? ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 32 + 19, 6 by 32 + 19, सो हमें क्या मिलेगा, सो नंबर्स डिविजिबल बाई 3 और 5 और बोथ. ठीक है, ये नहीं चाहिए हमको, हमें बोथ वाला तो किस्सा ही खत्म करना है, तो 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. A box contains 16 balls, of which 8 are blue balls, 5 are red balls, and 3 are green balls. If 2 balls are drawn from the box at random without replacement, so what is the probability that at least 1 ball is red and no ball is green? 16 balls in total. Out of those 16 balls, 8 are blue, 5 are red, and 3 are green. Now 2 balls are drawn without replacement. So if the 2 balls are drawn without replacement, तो चाहे तुम उन दोनों बॉल्स को एक साथ भी उठा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक एक करके उठाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो एक साथ उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. व्हेन वी आर ड्रॉइंग 2 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट, तो फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट के केस में फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्रॉन 1 बॉल, तो फर्स्ट बॉल इज ब्लू. ठीक है, तुमने ब्लू देखा, ब्लू बॉल का कलर देखा, और वापस से उस बॉल को तुमने
बास्केट में या बॉक्स में डाल दिया। तो कलर देखने के बाद में अगर वापस से तुम बास्केट में डाल दे रहे हो तो बास्केट में टोटल नंबर बॉल्स आर नॉट चेंजिंग इवन आफ्टर टेकिंग आउट वन बॉल, क्योंकि तुमने बॉल का कलर देखा फिर वापस से उसको सेम बॉक्स में डिपॉजिट कर दिया, तो नंबर ऑफ बॉल्स रिमेन 16। सो दैट इज वाई साथ में दोनों बॉल्स फिर नहीं उठा सकते, क्योंकि जब हम साथ में दो बॉल्स उठाते हैं तो एक तरह से भले ही साथ में उठा रहे हैं, बट ऐसे समझो कि तुमने फर्स्ट बॉल जैसे ड्रॉ किया तो फर्स्ट बॉल का कलर जो तुम अगर बॉल पे नंबर्स लिख दो, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 16 तक के नंबर्स लिख दो, तो दोनों बॉल्स तुम्हारा सेम नंबर का नहीं हो सकता है। बट व्हेन यू आर टेकिंग टू बॉल्स विद रिप्लेसमेंट देन बोथ द बॉल्स कैन बी ऑफ द सेम नंबर, बिकॉज तुमने नंबर देखने के बाद वापस उस बॉल को रख दिया अंदर, तो बोथ केसेस आर डिफरेंट। ठीक है, सो टू बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम दोनों बॉल्स को साथ में पिक कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज रेड एंड नो बॉल इज ग्रीन। वन बॉल इज रेड कम से कम एंड नो बॉल इज ग्रीन, तो कोई भी बॉल हमें ग्रीन तो लेना ही नहीं है। सो आवर ओनली फोकस विल बी ऑन दीज 13 बॉल्स। ठीक है, एंड एटलीस्ट वन बॉल हैज टू बी रेड। सो देयर विल बी टू केसेस। First case will be when both are red, and second case will be when one is red and one is blue. ग्रीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सो बोथ आर रेड, तो टोटल रेड बॉल्स हमारी 5 हैं, तो बोथ बॉल्स विल बी चोजन फ्रॉम दीज 5 बॉल्स, तो 5C2। ओके, बाकी 8C0 3C0 वो तो होना ही होना है। बाकी 11 में से 8C0 3C0 कर दो या 11C0 कर दो, बात एक ही है, क्योंकि 0 बॉल्स चूज करने का एक ही तरीका है, तो चाहे मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, तो इसलिए वो लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, पर तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, सो 5C2 यानी कि 10 वेज होंगे। क्लियर है? सेकेंड केस 1 रेड 1 ब्लू, तो 1 विल बी रेड बॉल 5C1 एंड 1 ब्लू 8C1, या 5 into 8 40 आ जाएगा। ठीक है, सो 10 वेज विल बी टू चूज बोथ रेड बॉल्स एंड 40 वेज विल बी टू चूज 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। ओके, सो काम के केसेस क्या क्या, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस हमारे कितने हैं? 10 + 40। टोटल केसेस कितने आएंगे अपने? 16 में से 2 बॉल्स चूज करो, 16C2, एंड 16C2 क्या आएगा? 16C2 इज 16 into 15/2, so this is 8 into 15 120, so 50/120 will be our answer, which will simplify to 5/12. Option D, 5/12 will be the answer. क्लियर है? ठीक है, ओके, अब यहां पे देखो कुछ बच्चे क्या अपने एंड पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सोच सकते हो, जो कि गलत होगा, बट पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एटलीस्ट 1 हमें चाहिए रेड, तो यू माइट थिंक कि वी हैव 8 ब्लू बॉल्स 5 रेड बॉल्स। ओके, ग्रीन तो चूज करना ही नहीं है, तो ग्रीन का तो टेंशन नहीं है, कोई भी ग्रीन नहीं चूज करेंगे। सो आउट ऑफ 8 ब्लू एंड 5 रेड, पहले एक रेड बॉल को सेलेक्ट कर लो और फिर बची हुई बॉल्स में से किसी भी बॉल को सेलेक्ट कर लो, ये सोच सकते हो। ठीक है, सो एक रेड बॉल सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 5C1, एंड देन अब बॉल्स कितनी बची? 13 थी, एक बॉल तुमने निकाल लिया, 12 बची है, तो आउट ऑफ दीज रिमेनिंग 12 यू कैन चूज एनी बॉल। 5C1 एंड 12C1, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 60, बट ये हो जाएगा गलत। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। और क्यों ये करेक्ट अप्रोच नहीं है? ऐसे समझो कि लेट्स से you've chosen 5 रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स का नंबर है R1 R2 R3 R4 एंड R5। ठीक है, सो देयर आर 2 केसेस। फर्स्ट केस तुम्हारा ये रहा जिसमें यू चोज 1 रेड बॉल एंड दैट रेड बॉल बाय 5C1, सो दैट रेड बॉल इज R1। ठीक है, देन यू चोज 1 मोर रेड बॉल, 1 मोर बॉल आउट ऑफ 12, और 12 में से तुमने R2 को चूज कर लिया, तो पहले यू चोज R1 देन यू चोज R2। ठीक है, और सेकेंड केस कुड बी कि तुमने 5C1 में पहले R2 को चूज किया एंड देन बची हुई 12 में से यू चोज R1। क्या ये दोनों केसेस डिफरेंट है? क्या ये दोनों केसेस डिफरेंट है? आर दीज 2 केसेस डिफरेंट? बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली सेम केस है। सो यू आर डबल काउंटिंग दीज केसेस। ठीक है, दीज केसेस आर बीइंग डबल काउंटेड इन दिस मेथड। ठीक है, डबल काउंटिंग हो रहा है, एंड दैट इज वाई दिस मेथड इज इनकरेक्ट। ठीक है, या तो तरीका ये है 60 तुमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसमें से जो केसेस डबल काउंट हो रहे हैं उनको हटा दो, यानी कि दो केसेस जहां पे कि बोथ बॉल्स आर रेड, तो सब्ट्रैक्ट 5C2 वाला केसेस 1 टाइम, क्योंकि डबल काउंट हुए, 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 60 - 10, नाउ दिस विल बी 50, नाउ दिस इज करेक्ट। क्या ये क्लियर है? क्या लॉजिक समझ में आता है? ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है, तो ये क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, दैट इज वाई या तो ऐसे कैलकुलेट करो विच इज बेटर, गलती नहीं होगा तुमसे, और अगर ऐसे करने वाले हो तो फिर ध्यान रखना कि डबल काउंटिंग हो रहा है, उनको हटाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A milkman mixes 20 liters of water with 80 liters of milk. After selling 1/4 of this mixture, he adds water to replenish the quantity that he has sold. So what is the current proportion of water to milk? Current proportion of water to milk क्या होगा? ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं. So initially water and milk का रेशियो क्या है? 20 and 80 है. Water is 20 liters, milk is 80 liters. Okay, 20 liters and 80 liters. After selling 1/4 of the mixture, so he has sold 1/4 of the mixture. So total mixture कितना था? 20 plus 80, 100 liters था. So he has sold 1/4 यानी 25 liters he has sold. और जब वो 1/4 सेल करेगा तो 1/4 वाटर भी सेल हो जाएगा, 1/4 मिल्क भी सेल हो जाएगा. यानी कि वाटर कितना बचेगा? 5 लीटर्स सेल हो जाएगा, मिल्क भी 20 लीटर्स सेल हो जाएगा, क्योंकि मिक्स तो प्रॉपर अच्छे से ही किया है उसने. ठीक है, सो 20/80 था, 5 और 20 कम हो गया. ठीक है, ये एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज है. So 20 minus 5, water remaining is 50 liters and milk remaining is 60 liters. Now 75 liters total बचा है. अब तक सब कुछ सही किया हमने, कहीं गलती नहीं किया. क्वेश्चन ये कह रहा है, he adds water to replenish the quantity that he has sold. Replenish यानी कि फिर से उसको फिलअप करना है. जितना क्वांटिटी खर्च हो गया है उतना वो एड अप कर देगा, यानी 25 liters he will be further adding up and that complete addition will be water only. So he will be adding 25 liters water. So all 25 liters will be water. 15 plus 25, now water will be 40 liters. And milk is 60, so ratio will be 40:60, which is 2:3. So ratio of water and milk is 2:3. Again, very important, लास्ट लाइन में हमें ऑर्डर क्या गिवन है. कभी कभी उल्टा ऑर्डर गिवन होगा, मिल्क टू वाटर, तो उल्टा रेशियो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है. ठीक है, फिर दोनों ऑप्शंस गिवन होंगे या एक ऑप्शन गिवन होगा, एक जगह नन ऑफ दीज गिवन होगा, नन ऑफ दीज मार्क करना पड़ेगा. तो ये ध्यान रखना है, लास्ट लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अदरवाइज पूरा क्वेश्चन सही करोगे और लास्ट लाइन को गड़बड़ कर दोगे. तो 2:3 विल बी द आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर. Next question. Let Sn denote the sum of the squares of the first n natural numbers if Sn is equal to 105 times n. So find the value of n. Sn is denotes the sum of squares of first n natural numbers. और formula क्या होता है? Sum of squares of first n natural numbers. That formula is n into n plus 1 into 2n plus 1. This divided by 6. And this is equal to 105 times n. So n से n हो जाएगा cancel. Remaining will be n plus 1 into 2n plus 1, that is equal to 105 into 6, which is 630. Okay, clear. ऑप्शंस गिवन है 15, 16, 17, 18. कोई भी एक वैल्यू डाल के पुट कर लो, पुट करके चेक कर लो. 630 हमारा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो n plus 1 into 2n plus 1 का, यानी कि वन ऑफ दीज नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और मे बी मल्टीपल ऑफ 10. ठीक है, सो n इज इक्वल टू 15 पुट करोगे, 15 प्लस 1 16 आएगा, 16 इंटू 31 नहीं बनने वाला. 16 पुट करोगे, 16 प्लस 1 17 इंटू 33 नहीं बनने वाला. 17 प्लस 1 18 और इंटू 35, बिल्कुल यही आंसर है. ओके, 18 इंटू 35, 630 विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A certain quantity is measured on two different scales, the R scale and the S scale, and those scales are related linearly. Question कह रहा है related linearly. So this relation is linear. ठीक है, there are two types of relation. One is proportional relation. Proportional relation. हाँ, proportional inversely proportional भी आता है, but proportional. Second is linear relation. So if relation is proportional between two quantities, let us say A and B are the quantities, X and Y are the quantities, so X is proportional to Y implies that X changes with Y, X is equal to KY. यानी कि if Y is 0, X will also be 0. ठीक है, if Y is 0, X will also be 0. They are proportional completely. ठीक है, but linear relation implies that X will be equal to KY plus some constant. Okay, so if y is 0, x might not be 0, x might be equal to 0 plus c. So in the first case, in case of proportionality,
if we draw the graph of x equal to ky, so the graph of x equal to ky will be like this. This will be a line going through origin. This is the graph of x equal to ky. ठीक है, but x equal to ky plus c का graph will be like this, parallel to x equal to ky line but slightly above, because at y equal to 0, ठीक है, यहाँ पे x और y उल्टा पुल्टा हो गए हैं, पर उसको समझ लो, ठीक है, समझ लो, अभी सारी चीज़ों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक हम समझ रहे थे, ठीक है. सो मान लेते हैं दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, बिकॉज x इक्वल टू ky प्लस c किया हमने, तो y इज इक्वल टू 0 पे x विल बी इक्वल टू c. ओके, क्लियर है. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मेजरमेंट ऑन द आर स्केल ऑफ 6 and 24 करेस्पॉन्ड टू मेजरमेंट ऑन द स्केल ऑफ 30 and 60. So R and S are related linearly, so we can assume that, let us say S स्केल का मेजरमेंट हमारा है इक्वल टू y और R स्केल का मेजरमेंट है x, बोथ आर रिलेटेड लिनियरली, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b. लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है. सो इफ R रीडिंग इज 6, रीडिंग ऑन R स्केल इज 6, रीडिंग ऑन S स्केल क्या है, करेस्पॉन्डिंग रीडिंग 30 है. इफ रीडिंग ऑन R स्केल इज 24, करेस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑन S स्केल इज 60. ओके, ठीक है. तो 6 पे हमें वैल्यू मिल रहा है 30 का, व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज 30, व्हेन x इज इक्वल टू 24, y इज 60. ओके, क्लियर है. ओके, सो y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है. तो फर्स्ट केस में क्या बनना है हमारा, व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू y यानी 30 होगा वैल्यू y का, 30 इज इक्वल टू 6a प्लस b. सेकेंड इक्वेशन बनेगा 60 इज इक्वल टू 24a प्लस b. सॉल्व कर लोगे तो 30 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 18 है. सो a यहां से आ जाएगा इक्वल टू 30/18 यानी 5/3 आ जाएगा. ओके, a इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट मेजरमेंट ऑफ आर स्केल करेस्पॉन्ड्स टू अ मेजरमेंट ऑफ 100 ऑन द एस स्केल, 100 ऑन द एस स्केल. ओके, क्लियर है. अब a इज इक्वल टू 5/3 हमने निकाल लिया पुट करके, तो b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो b विल बी इक्वल टू 30 माइनस 6a, तो 30 माइनस 6 इंटू 5/3 यानी 30 माइनस 10 20 आ जाएगा, b इज इक्वल 20 आ जाएगा. सो अब तुम्हें वैल्यू दिया है y का 100 दिया हुआ वैल्यू, सो 100 विल बी इक्वल टू a which is 5/3 into x plus 20. तो x क्या आ जाएगा हमारा, 5/3 x आ रहा है, 5x/3 आ रहा है, 100 माइनस 20 विच इज 80. सो x आ जाएगा 80 इंटू 3/5, 16 इंटू 3, x विल बी इक्वल टू 48. सो आर स्केल का मेजरमेंट हमारा आ जाएगा 48. क्या ये लॉजिक क्लियर है? ये लंबा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे हम एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट क्या अभी ये बात समझ में आती है? ठीक है. अब इस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्टकट में करेंगे, कैसे इजीली करेंगे, इजीली समझ के करेंगे, शॉर्टकट तो नहीं है, इजीली कॉन्सेप्चुअल तरीका है जिससे कि इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो आर स्केल और एस स्केल का रीडिंग हम फिर से एक बार नोट करते हैं. आर स्केल का रीडिंग है 6, करस्पॉन्डिंग रीडिंग फॉर एस स्केल इज 30, रीडिंग ऑफ आर स्केल इज 24, करस्पॉन्डिंग रीडिंग इज 60. सो इफ यू ऑब्जर्व, if we increase the reading of R scale by 18 units, so there is an increase of 30 units in the S scale. 18 पे 30 यूनिट्स का इंक्रीज होता है, isn't it so? या इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 18 पे अगर 30 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है, 6 से कट पिट जाएगा, यानी कि 3 के इंक्रीज पे, आर स्केल पे 3 के इंक्रीज पे, एस पे कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा, 5 का इंक्रीज हो रहा है. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एस स्केल पे रीडिंग 100 होगा तो व्हाट विल बी रीडिंग ऑन द आर स्केल. सो 100 रीडिंग एस स्केल पे है, यानी कि इंक्रीज कितना है, 40 का है. तो आर स्केल पे कितना इंक्रीज होगा भाई, एस स्केल पे 5 यूनिट्स के इंक्रीज पे आर स्केल पे इंक्रीज होता है हमारा 3 यूनिट्स का, और कितना हो रहा है यहाँ पे 40 हो रहा है, विच इज 5 इंटू 8. ठीक है. तो 5 यूनिट्स का इंक्रीज पे यहाँ पे 3 का इंक्रीज होता है, तो 5 इंटू 8 के इंक्रीज पे कितना होगा, 3 इंटू 8 का इंक्रीज होगा, 24 का इंक्रीज होगा, यानी 48 हो जाएगी वैल्यू. 48 विल बी द आंसर. क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question is saying instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal and saved a distance equal to half the longer side. Then ratio of the shorter side to longer side क्या होगा? Ratio of the shorter side to longer side क्या होगा? Okay. ठीक है, तो instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, तो let us make a rectangle first. So this is a rectangle. A boy took a shortcut along the diagonal and saved a distance equal to half the longer side, then ratio of the shorter side to longer side. हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड टू लॉन्गर साइड. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो दो अननोन कभी भी एज्यूम मत करो. हमें क्या चाहिए? शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड का रेशियो. तो शॉर्टर साइड को हम मान लेते हैं x, लॉन्गर साइड को मान लेंगे 1. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. आई रिपीट, शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड का रेशियो चाहिए, तो हमने शॉर्टर साइड को x मान लिया, लॉन्गर साइड को 1 मान लिया, और अब हमें x:1 यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, सो लेट अस से दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 1, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट ही सेव्ड डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड. तो दिस 1 इज द लॉन्गर साइड दैट वी एज्यूम्ड. तो कितना डिस्टेंस सेव किया उसने? हाफ द लॉन्गर साइड यानी 1/2 डिस्टेंस सेव किया होगा. अगर वो जाता वाया दिस पाथ तो x+1 डिस्टेंस ट्रैवल करता. सो ही सेव्ड डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड यानी x+1 माइनस हाफ. This will be this distance which is equal to x plus half. So the length of diagonal will be x plus half. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो. So x square plus 1 square, this is equal to x plus 1/2 whole square. So x square plus 1, this is equal to x square plus 1/2 square यानी 1/4 plus 2 into 1/2 into x which is equal to x only. x square से x square cancel out हो गया. x becomes equal to 1 minus 1/4 which is equal to 3/4. So answer will be 3/4, option D. Okay. Clear? Next question करते हैं. When asked for his taxi number, the driver replied, "If you divide the number of my taxi by 3, 4, 5 or 6, each time you will find a remainder of 1. But if you divide it by 11, the remainder is 0. You will also not find any other taxi driver with the taxi having a lower number who can say the same. If all taxi numbers are 3-digit numbers, then what will be the remainder if his taxi number is divisible by 13? What will be the remainder if his taxi number is divided by 13? Divisible नहीं, divided by 13. Okay. तो सारे के सारे नंबर्स हमारे 3-digit numbers हैं. They will be greater than 100. ठीक है, greater than equal to 100. All the numbers. और क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड द नंबर ऑफ माई टैक्सी बाई 3, 4, 5 और 6. ईच टाइम यू विल फाइंड अ रिमाइंडर ऑफ 1. So divide by 3, remainder is 1. Divide by 4, remainder is 1. Divide by 5, remainder is 1. तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? We can take LCM of 3, 4, 5 and 6. And if we add 1, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. 3, 4, 5, 6 का LCM क्या आएगा? 60 आएगा. 60 plus 1 is 61. 60 plus 1 is 61. तो 61 सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पहली वाली कंडीशन को. ठीक है, बट इफ यू टेक 60 into 2 and then add 1, 121, तब भी तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. यानी कि इन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 60 का एनी मल्टीपल प्लस 1. दिस विल सेटिस्फाई दैट कंडीशन दैट इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाय 3, 4, 5 और 6, ईच टाइम यू विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1. बट सेकंड कंडीशन इज इफ यू डिवाइडेड बाय 11, द रिमाइंडर इज 0. यानी कि दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11 एज वेल. 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए. और ऑल्सो यू विल ऑल्सो नॉट फाइंड एनी अदर ड्राइवर विद अ टैक्सी हैविंग अ लोअर नंबर who can say the same. This should be lowest such number, smallest such number, smallest such number. Okay, and this is a 3-digit number. So 121 should be that number. या जनरल नंबर हमारे क्या होता है? 60 के प्लस 1 को चेक करते हैं. 61, 121, 181, 241, 301, 361 एंड सो ऑन. नंबर्स को देखते हैं, बट हमें 121 पे ही सॉल्यूशन मिल गया है. 121 इज द मल्टीपल ऑफ 11, तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट हैज टू बी द स्मॉलेस्ट नंबर. तो 121 विल बी द नंबर. बट क्वेश्चन ने नंबर नहीं पूछा है रिमाइंडर क्या होगा इफ हिज टैक्सी नंबर इज डिवाइडेड बाय 13. तो 121 डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर क्या आएगा? 13 9s are 117. तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर दैट विल सैटिस्फाई बोथ द इनिशियल कंडीशंस? 121 तो पहला नंबर हो गया. नेक्स्ट नंबर विल बी 121 प्लस LCM ऑफ
क्योंकि ये नंबर हमारे 60 के गैप पे आ रहे हैं और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो एलसीएम ऑफ 60 एंड 11 विच इज 660 बिकॉज को प्राइम नंबर्स है 660, तो 121 प्लस 660, द नेक्स्ट नंबर विल बी 781 और उससे नेक्स्ट नंबर 721 प्लस 660 एंड सो ऑन। क्लियर है? ओके, तो जनरल नंबर ऑफ दिस टाइप विल बी 660 का मल्टीपल, any multiple plus 121. So this will be a multiple of 11 as well as when you are dividing by 3, 4, 5 or 6, this will give a remainder of 1. क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डीलर buys dry fruits at rupees 100, rupees 80 and rupees 60 per kilogram. He mixes them in the ratio 3:4:5 by weight and sells at a profit of 50%. So first he is mixing these dry fruits in the ratio 3:4:5 and then selling at a profit of 50%. So what price per kilogram does he sell the dry fruit? पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर उसको 50% इन्फ्लेट करके पर केजी निकाल लेंगे क्वांटिटी, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, वन इज ऑफ रुपीज 100, second is of rupees 80 and third is of rupees 60 and he is mixing them in the ratio 3:4:5। क्योंकि वैल्यू सिंपल है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, कितना कॉस्ट आ रहा है, मान लो कि 3 kg उसने परचेज किया पहला टाइप, 4 kg सेकंड टाइप एंड 5 kg थर्ड टाइप, तो रेशियो 3:4:5 मेंटेन्ड है। टोटल हो जाएगा हमारा 5 + 4 + 3 12 kg एंड टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 100 × 3 300 प्लस 80 × 4 320 plus 60 × 5 300. Total cost comes out to be 920 rupees. This is the cost. Okay, and he is selling at a profit of 50%. 1/2 का profit है. So if 2 is the cost, 1 should be the profit. 1 should be the profit. So selling price will be per kg cost कितना आएगा, 920 rupees is total cost. Total है 12 kg, तो 920/12. This is CP per kg. कॉस्ट प्राइस पर केजी, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, 1/2 का प्रॉफिट है, तो इफ सीपी इज इक्वल टू 2 रुपीज, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपी, सेलिंग प्राइस विल बी 3 रुपीज, यानी कि 3/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 2:3, यानी सेलिंग प्राइस विल बी 3/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब सिंप्लीफाई कर लो, 4 बच गया यहाँ पे, 920/8 विच इज इक्वल टू 460/4 115 रुपीज। सो 115 रुपीज पर केजी should be the selling price of the fruits. Option D will be the answer in this case. Clear? Option D will be the answer. Okay. ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट्स ऑल। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किया समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। And if you have liked the session, then make sure to hit the like button as well. Okay, make sure to hit the like button, and if you have not already subscribed to the channel, then also subscribe to the channel. You can also connect with me on Telegram at ADITYAKT, or you can join the Telegram channel Mathological or WhatsApp channel Mathological. That is all. Bye bye. Take care and keep learning.